Namaste friends, and let's welcome Nagin Bhai Jagada from US. Namaste sir, and welcome. दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं नागीन चंद्र जगाड़ा, a great humanitarian. He believes that the needy in India are poor by circumstances, yet rich in culture. Yet rich in culture. Nagin Bhai Jagada was born in 1938 and grew up in Rajkot. He graduated in BA Maths and also became accountancy at Dharmendra Singh Ji College in Rajkot. His working life began by taking a job at State Bank of Saurashtra. Nagin Bhai Jagada's new life took him to Kuwait in 1965, where he took up an employment as a marketing budget supervisor at the Kuwait Danish Dairy, one of the biggest dairy. After 35 years of services, he took his retirement and immigrated to USA to join his two sons. Nagin Chandra Jamna Das Jagara. That's his full name. I won't share his age. Let him say that. He's now settled in Dallas, USA. He started his humanitarian journey in 2002 in the name of Upper Foundation by distributing clothing and various other essentials to the poor and needy in the small towns of Gujarat with the financial support of his family. He has contributed his work with annual trip to India. His work has grown exponentially with every trip, and he is planning to go on to help many more of those in need. Nagin Bhai would like to thank Sri Bhaskar Devji Behran for his full support in his mission. His humanitarian work was featured in various newspapers in Gujarat. Nagin Bhai Jagada with Praful Bhai Goswami and members of Bharat Vikas Parishad were recognized by the Gujarat government for their outstanding contribution. Chief Minister of Gujarat, Mr. Vijay Rupani, and MLA of Rajkot Govind Bhai Patel with the Mayor of Rajkot Dr. Jaman Bhai Upadhyay, Deputy Mayor were present at the one of his camp. They all appreciated and liked the humanitarian work done by the volunteers. His believer and practices Vipassana meditation. Vipassana, which means to see things as they really are, is itself one of India's most ancient techniques of meditation. Let's welcome Nagin Bhai Jagada. Welcome, sir. Uncle, કેમ છો મજામાં? હા બરાબર છે. હા પરફેક્ટ. આજે મળવાનું થઈ ગયું તમારા જોડે. નહીં સારું સારું તમે જોઈને આનંદ થયો. હા મને બી. नमस्ते सर एंड वेलकम. નમસ્તે. थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आप इंडिया से कैसे शिफ्ट हो गए बाहर. સ્ટેજ ઓછું સંભળાય છે મને. ઓછું સંભળાય છે? હા હવે બરાબર. મેં અવાજ અહીં ઓછો છે અમારે. हाँ. અચ્છા હા थोड़ा બોલો. सा आप ફરીથી इंडिया, हाँ इंडिया से कुवैत कैसे गए, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए मुझे. અચ્છા ઇન્ડિયાથી 1965 માં અમે કુવૈત ગયા અને એટલા માટે કે ત્યારે હું એ પહેલા બેંકમાં જોબ કરતો હતો ओके. જામનગર બેંકમાં અને ત્યાં મારી સગાઈ ને મારી શાળા ને એ બધા એ વખતે એડન હતા ને એડન થી કુવૈત આવ્યા હતા ને એવી રીતે હતા. પછી મને મારા શાળા એકવાર મળવા આવ્યા હતા. जी. એ કે તમે નોકરીમાં શું મળે તમને, એટલે મેં કીધું આટલો પગાર હોય આમ તેમ, બેંકની નોકરી એટલે બહુ સારી કહેવાય એ વખતે પણ. એટલે મેં કીધું મને તો આટલો પગાર છે, બહુ હેપી છું, આમ છે, બધું સારું છે જામનગર. તો કે ના, કે તમારા નસીબમાં હોય તો તમે આથી તો ક્યાંય વધારે કમાશો કે તમે કુવૈત આવો કે એવી રીતે. એટલે એ મને તેડી ગયા અને ત્યાં થોડો વખત રાજીનામું નહોતું આપ્યું. 3 મહિનાની રજા મૂકી હતી, કીધું આપણને ફાવે ન ફાવે તો પાછું આવતું રહેવાય. પણ ત્યાં ગયા પછી ધીમે ધીમે નોકરીમાં લાગી ગયા અને પ્રોબ્લેમ ઘણા નડ્યા. ખાસ પ્રોબ્લેમ એ હતો કે ઓલા ગુજરાતી મીડિયમ હતું ત્યારે, એટલે બધું ઇંગ્લિશમાં સરખું બોલવું ને ફાવે જ નહીં. એટલે બેંકમાં પણ એપ્લાય થયેલો, બેંકમાં એપ્લાય કર્યો તો તમારા મેનેજરે આટલું ભણ્યા નથી અને તને ઇંગ્લિશ બોલતા તો આવડતું નથી કે. એટલે આજ સુધીમાં એ પ્રોબ્લેમ થોડો થોડો રહ્યો જ. પછી પછી હવે તો એજ થાય એટલે બધું હવે બહુ નથી એની દરકાર કરતો, ચાલે છે બધું, વાંધો નથી કોઈ જાતનો.
तो सर क्या एज है आपकी अभी? क्या जॉब કર્યું? શું ઉંમર છે? એજ એજ क्या છે? એજ 82 આજે છે. 82, ओके। 82 એજ છે. तो आपने कब से स्टार्ट किया? अर्पण फाउंडेशन कब से स्टार्ट किया? हाँ, अर्पण फाउंडेशन जब भी हम ईयर 2000 में कुवैत छोड़ के आ गया, तो ओके। 1990 में भी कुवैत छोड़ा था, लेकिन वो छोड़ना पड़ा था। आपको मालूम होगा कि वो इराक ने हमला किया, वो टाइम हम उसके ऊपर थे। आपने वो पिक्चर देखा है? पिक्चर में भी आता है बहुत स्टोरी, उसमें से हम भी पास हुआ है सब। लेकिन वो खैर वो टाइम चला गया, फिर कंपनी ने वापस बुलाया था हमको। फिर हम दो ईयर 2000 में ऐसे हमारा 60 प्लस तो हो गया था, तो बच्चे लोग इधर सेटल होता था। अच्छा, फिर बोलता है अभी बहुत काम किया आपने, अभी छोड़ो नौकरी, तो ऐसे रेजिग्नेशन दिया था। हाँ हाँ। वो रेजिग्नेशन केडीडी कुवैत डेनिश डेयरी में काम करता था। तो वो डेयरी तो बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओह, 800 आदमी काम करता है उधर, 800 पीपल वर्किंग। ओके। हाँ, तो उसमें हम स्टोर कीपर से, पहले कंप्यूटर का टाइम नहीं था, तो हम स्टोर कीपर वो टाइम नौकरी करता था। तो ओके। लेकिन हमारा आदत क्या था कि एक बड़ा बुक था हमारे पास, तो हम वो सब रिकॉर्ड और सब का सेल्स और ऐसे हमारा पर्सनल की नोटिस करने के लिए सब हम लिखता था। तो एक दफे बैंक का मैनेजर पूछता है कि एवरी टाइम आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन एंड स्ट्रेट अवे यू गिव रिप्लाई, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग ऑल दिस? कंप्यूटर तो है ही नहीं वो टाइम में। फिर हमने बोला कि हमने ये आदत है हमारा, फिर कभी भी कुछ मांगता है तो हमको पूछता है। तो ये उससे जवाब से इतना खुश हुआ और हमको उधर से उठा लिया। फिर हम मार्केटिंग बजट सुपरवाइजर, फिर उसमें आगे आगे वो कंपनी क्या प्रोडक्शन बनाना है सब हमारा पर दे दिया है, क्योंकि हाँ ये मास्टर ही था उसमें। फिर हमारे पास फिगर और सब था, क्योंकि जनरल मैनेजर को भी कुछ काम है कि बोलता है ये क्यों ऐसा हो गया, ये सेल क्यों ऐसा हो गया, ये सेल क्यों हो जाए, तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास से ही अच्छा जवाब आता है। अच्छा। अगले अगले से 1 साल पहले क्या था, तो इसीलिए इतना सेल बढ़ गया, क्यों इतना? क्योंकि हमारा आइटम बहुत था। एक साथ सुबह में खाली 40 गाड़ी बेचने को चली जाती थी। ओके। तो आपने जब रिटायरमेंट लिया तो आपको रिवॉर्ड दिया गया वहां से? आपने रिटायरमेंट लिया वहां से? हाँ, रिटायरमेंट लिया था। हाँ। रिटायरमेंट में सपना जी क्या रूल है उधर कुवैत का कि कंपनी तो हमको कभी छोड़ने वाली नहीं थी, ओके। क्योंकि 60 इयर्स हमको हो गया है ऊपर, तो अभी हेल्थ तो काफी अच्छा था। और एक दिन भी हम 1 साल में भी एक दिन छुट्टी नहीं ले लिए हमने, और वो भी इंक्लूडिंग उधर फ्राइडे होता है, जैसे संडे है ना, तो अरब कंट्रीज में फ्राइडे छुट्टी होती है, ओके। तो फ्राइडे भी हमको छुट्टी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। यानी पूरा 1 साल का एक समझो एक दिन ऐसा हमारा, ऐसा काम, सिंसियरिटी। लेकिन कभी बीमार नहीं हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ नहीं, ओवर टाइम मिलता था काफी, सब हमको अच्छी तरह से। तो ऐसा सिंसियरिटी तो बहुत था काम में। ओके। तो आस्ते आस्ते चेयरमैन को तो ये सब नजर में आ गया कि ये आदमी कितना सिंसियर है। ओके। तो उसने कभी रोज सुबह में उसको फिगर मांगता है, रोज डेली सुबह में ऑफिस आएगा, पहले हमारा नाम पुकारेगा, झगड़ा ऐसा। फिर हम उसको ऑफिस में जाने का है, फिर हम फिगर देगा उसको कि ये है ये है ये है, फिर बस 5 मिनट हमारे साथ पहले डिस्कस करेगा, फिर उसका काम चालू करेगा ऐसा। तो उससे बहुत, यानी वो क्या बोलता है कि ये कंपनी में हमको सबसे 3-4 आदमी हम बेस्ट लाइक करता है, इसमें से तुम्हारा भी नंबर है।
ओके। ऐसा बोलता था वो। वो बोला ना, अमीर, कुवैत का अमीर था, उसका वो एडवाइजर भी था। ओह, हाँ हाँ हाँ, वो मालिक है। हाँ हाँ। मालिक यानी 800 आदमी कंपनी, यानी मल्टी मिलियनर, ऐसा कोई पैसा का तो है ही नहीं कुवैत में कोई। तो तो हाँ आप आपने हाँ रिटायरमेंट लिया तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिया हाँ। उन्होंने? तो रिटायरमेंट लिया ने तो उधर रूल ऐसा है रिटायरमेंट में कि अगर हम रिटायरमेंट लेगा तो ये इंडेमिनिटी होता है ना, जो जी जी। इंडेमिनिटी, उसका हाफ, आधा पैसा मिलता है हमको। ओके। और कंपनी हमको बाहर निकाल देगी तो पूरा पैसा देगा। हाँ हाँ। ओके। और 15 दिन का नोटिस देना है कंपनी को अगर रिजाइन करेगा तो। तो हमने रिजाइन किया तो 1 साल तक हमको जवाब नहीं दिया हमारा रेजिग्नेशन का। हाँ। अच्छा। बोलते हैं, नहीं तुमको जाने ही नहीं, जाने है ही नहीं तुमको। ओके। फिर 1 साल के बाद ये लोग सोचा कि अभी काफी उसको ये टाइम हो गया है, अभी जाने का है, ये है वो, जरूर ऐसा तो सोचेगा, एज भी है उसका। ओके। फिर हमको दिया कि परवाह नहीं, आप अभी जा सकता है 1 साल के बाद। उसने सब एडजस्ट किया, कोई आदमी बुलाया, ऐसा बराबर कंप्यूटर में सब हमने डाल दिया, सब फिगर डाल दिया, ये सब किया है ना। ऑनेस्टी में किसी तरह से बैकवर्ड नहीं पड़ा है हम, जी। हाँ हाँ हाँ। सिंसियरिटी में। तो काम भी तो। और दूसरा हमारा उधर एक आदत था कि हम्म। आफ्टरनून जब ये लंच के टाइम होता है ना, छुट्टी 1 घंटे का, तो जी लंच तो हम उधर से घर से लेके जाता था, क्योंकि जी। वेजिटेरियन है हम लोग। हाँ तो घर से लेके जाता है, लेकिन 10-15 मिनट में लंच ले लेता है, फिर बाहर निकलता था हम चलने को हाँ। थोड़ा, क्योंकि अच्छा वेदर। तो एक जगह हमने क्या देखा कि थोड़ा कबूतर है ना, वो हम्म कबूतर, वो पक्षी, हम्म। वो नीचे बैठा हुआ था। हाँ तो हमने उसको खाना देने का चालू किया। हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसा कंटिन्यू 7-8 साल तक चला, क्योंकि अच्छा। बचता ही गया, बचता ही गया, बचता ही गया। और हमारा घर में तो हम ये बड़ी बड़ी बैग लेके रखता था हाँ हाँ। उसके खाने के लिए। और सुबह में लेके, फिर हमको वॉचमैन भी पहले एक दफे हमको पूछा कि तुम इतना बैग में भर के रोज क्या जाता है। हाँ। फिर हमने बोला कि आप, पूछा ठीक है, हम इधर डेयरी का कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन ये है तो हम पक्षी के लिए उसको खाने का देने के लिए जाता है। हाँ तो हाँ। ये फिर कभी नहीं बोला हमको। ओके। लेकिन जब भी अभी रिजाइन हो गया ना, हम्म तो सेटलमेंट देने के लिए हमको बुलाया। हम्म फाइनल सेटलमेंट देता है इंडेमिनिटी। तो हम्म हम देखा कि चेक दिया, वो आधा रकम था, जो हम्म आधा यानी एज पर रूल। हम्म। फिर हम जैसे मेंटली पूरा तैयार था, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे इधर अच्छी तरह से सेटल होने लगा था। ये हमारा दोनों कंप्यूटर इंजीनियर है, दो बच्चा है, इधर मास्टरी किया है हाँ। अमेरिका में। हम्म। क्योंकि हम कुवैत से उसको ऐसे पढ़ाया है, पढ़ने में बच्चे लोग के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन हमको रिवॉर्ड भी मिला है इस सब हाँ सबका। हाँ तो हाँ। अच्छी तरह से फैमिली को, फिर ये बात आया तो हम मेंटली तो तैयार था कि परवाह नहीं, आधा पैसा मिलेगा, परवाह नहीं। लेकिन आधा पैसा मिलेगा, फिर हमारे सामने देखता है हाँ। कि क्या हम बोलता है। हम्म। फिर कुछ नहीं बोला, हम नमस्ते करके ऐसे उठ के जाता है। तो बोलते हैं बैठो बैठो बैठो। फिर आधा सेंटल में, आधा सेटल बाकी का पूरा सेटलमेंट, वो कितना है, वो टाइम तो लाखों रुपया में तो हाँ बहुत है। ये हाँ। टाइम तो आपको मालूम है, जी हाँ। आज कितना 20 साल पहले 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया क्या कीमत था उसका। हाँ हमने पहले कुवैत गया था तो सोचा था कि हमारे लाइफ में 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम कुवैत छोड़ छोड़ देगा। हाँ और हाँ इंडिया उसका इंटरेस्ट में 1,000 रुपया आएगा, हमारा हमारा भैया भैया है, ऐसा हाँ हाँ। ऐसा सोच, वो टाइम की बात है। तो फिर हमको बिठाता है और देखा क्या कि वो आज तक का रिकॉर्ड है कि उस डेयरी में हिस्ट्री में बना नहीं है, सब लोग हमारा इंतजार करता है कि ये यार देखता है ये आदमी को कौन क्या क्या मिलता है ऐसा।
लेकिन आज तक किसी को चेयरमैन ने पर्सनल हाँ, अकाउंट में से आधा आधा इंडिविजुअलिटी दे दिया हमको। अच्छा, हाँ, हाँ, पूरा वो चेक था, वो दूसरा चेक भी हमको दे दिया। ओके, हाँ, हाँ, और ऐसा बोला कि ये भी देगा आपको, और दूसरा ये भी कि आप जो पक्षी लोग को खाना खिलाता है हाँ, उसको खाना भी खिलाएगा हम। ओ, हाँ, 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 तो ये कुवैत का यानी हिस्ट्री है, लेकिन हाँ, बहुत काम किया है, सिंसियरिटी, लेकिन उसका बदला भी काफी मिला है। बच्चे लोग भी राइट। पढ़ाने में, कॉलेज में पढ़ा, ये सब कुछ आगे आगे आ गया सब। आप सर हर साल इंडिया आते हैं? हर हाँ, साल आप इंडिया आते हैं अपने हाँ, देश में और लोगों की हेल्प करते हैं, क्यों हाँ, आपको क्यों क्यों लगता है कि इंडिया आना है और हेल्प करना है लोगों की? हाँ, अच्छा है उसका। हाँ, हम है ने विपස්සना मेडिटेशन है, आपको मालूम है ना? हाँ, विपස්සना मेडिटेशन हम रोज करता है, वेरी सिंसियर। हाँ, 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 अभी भी सुबह में हम 3:30 बजे उठता है, ओह, और 365 डेज हमारा आदत है ऐसा। अच्छा, हाँ, हाँ, और सुबह में मेडिटेशन करता है। ओके, हाँ, तो ये मेडिटेशन एक दफे हम राजकोट सेंटर, राजकोट में भी गए, अमेरिका में भी बहुत कोर्स किया है, इगतपुरी में सब बहुत कोर्स किया है हमने, 20 कोर्स किया है। ओके, लेकिन राजकोट में एक दफे कोर्स करता था ना, तभी हम मेडिटेशन में बैठा था ना, तो हमको मेडिटेशन में ऐसा विचार आता है कि ये तो तुम्हारा अच्छा करते हो सब, ये करते हो तो तुमने दूसरे को लिए क्या करते हो? ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमको मगज में आने, हाँ, एक दफे नहीं 10 दफे आया कि ओके, हम बोला आप ठीक है, कुछ नहीं करता है, हम हमारे लिए ये करता है मेडिटेशन, जो भी करता है ये अपने खुशी के लिए करता है। तो बोलते हैं ऐसा तो कैसा चलेगा? फिर हमारा टीचर को बोला, कुछ टीचर होता है ना उधर, वो जी, टीचर के पास गया, हम मिलने का होता है टाइम, कि ऐसा ऐसा हमको होता है। तो हमारा पर वो हाथ रखता है, यानी उधर आरबी में बोलता है कि नहीं, हाँ, हाँ, यानी आपका कल्याण हो, हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ, तो फिर हमने क्या किया कि वो जब कोर्स पूरा हो गया बाद में, तभी हम उसने भी बोला कि ठंडी का सीजन है, आप ऐसा करो, गरीब आदमी लोग रास्ता पर सोता है, क्या करता है, उसको जाके ये चादर ऐसा ओढ़ा। फिर थोड़ा ऐसा नहीं था कि पैसे का कोई फिक्र था वो टाइम में भी, लेकिन इतना नहीं दे सकता जितना आज देता है। तो वो टाइम में इतना दिया तो भी काफी आ गया। फिर ये चादर लिया, हमारा खुद का पैसा ही, और वो टाइम सोचा कि एक साल का 1 लाख रुपया हम स्पेयर कर सकता है, ऐसा हमने राइट, अंदाजा लगाया था। राइट, तो ये 1-2 साल काम चला, लेकिन क्या हो गया सपना जी, हाँ, कि जब भी ये काम करता है ना, गरीब आए खूब बहुत देखा हमने। हाँ, गरीब इतना है, झुपड़पट्टी में जाता है खाने का दिल देने के लिए, अभी भी आज भी जाता है। तो देखा ना कि ये इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है। फिर हमने काम बढ़ा दिया। ओके, बढ़ा दिया तो इधर क्या हो गया, कुवैत में भी अच्छा इंप्रेशन हो गया दोस्त के वजह से, कि ये आदमी को क्या है कि इतना इतना काम करता है। तो हम कभी आज तक किसी को पूछा नहीं है। पहले कैलिफोर्निया में रहता था, अभी हम टेक्सास में मूव हो गया, अभी ओके, दोनों बच्चा टेक्सास में है। ओके, तो पहले ये बच्चा जो आया था ना, आपने देखा, वो पहले कैलिफोर्निया में सेटल हुआ था। ओके, हाँ, हाँ, तो कैलिफोर्निया में हम क्या बोलता है उसको हर दफे, कि आप दोनों भाई हो, एक स्थल पर रहो यार, कि एक जीवन है कि उसमें कभी जरूरत पड़ता है तो ऐसा करके आप इधर जा जाओ। तो कैलिफोर्निया इसने मूव नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम होगा कैलिफोर्निया से चीपर है बहुत। ये हाउस यानी 1/3 प्राइस में मिल जाएगा इधर। राइट, 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 हाँ, हाउस बड़ा। तो अभी भी हमारा ये बड़ा विला है, इधर रहता है वो। तो ये उसने यही विला लिया, हम ओके, जो रहता है आज बैठा है वो। हाँ, हाँ, और वो पैसा जो उधर का विला था बेच दिया, इतना पैसा आया।
वो राजकोट में भी एक बड़ा फर्स्ट क्लास फ्लैट ले लिया। ओके। हाँ हाँ। हाँ, हमारा घर था तो भी ले लिया फ्लैट, ऐसा यानी चला था। तो हम्म। ये हमारा जीवन। तो अंकल, सॉरी सर, फिर आपको क्यों लगता है कि मुझे भारत के लोगों के लिए हेल्प करनी है? क्यों? हाँ, यूएस में भी तो कर सकते हैं आप डोनेशन। नहीं नहीं। नहीं, उधर भारत में एक तो क्या कि हमारा मातृभूमि है, हाँ। वो राइट। तो कभी ऐसा अटैचमेंट तो कभी नहीं जाएगा। राइट। आज हम बहुत टाइम से अमेरिकन सिटीजन है, बहुत साल हो गया, राइट। सब लोग हमें, लेकिन अटैचमेंट तो गया ही नहीं। और वो हाँ उधर जन्म तो लिया है ना मातृभूमि में, फिर उधर क्या कि गरीबाई बहुत देखा, जी। गरीबाई बहुत देखा। और इतना पैसा हमारे पास कैलिफोर्निया में, सबको मालूम हुआ कि ये आदमी अच्छा इतना इतना काम करता है, फिर उसने ये हमको पैसा देने को चालू कर दिया। हम्म। तो आज तक हम किसी को कभी बोला नहीं है कि हमको ये काम करना है, पैसा हमारा बच्चे लोग भी देता है, हम भी देता है, ऐसा ये हम्म। ऐसा नहीं है कि दूसरे का लेके काम करता है। जी। लेकिन हमारा भी हर साल इतना ऐड करता है हम, और पूरा 100% हम, जो पैसा मिलता है उसका कोई एक्सपेंस है ही नहीं, राइट। कोई राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमारा 1 रुपया भी हम कभी कहीं नहीं करेगा। ये सब चैरिटी के लिए जाता है। तो हाँ। ऐसे इम्प्रेशन इतना अच्छा हो गया ना, तो काम बढ़ ही गया। फिर कैलिफोर्निया में ये जो बच्चे लोग को स्कॉलरशिप देता है, आपने पढ़ा होगा स्कॉलरशिप। हाँ जी। आज भी आज 40 आदमी को जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जी। जो जाता है ना, उसको हम्म। मिलता है। ओके। वो क्या है कि उधर अमेरिका में एक इंडियन का ही है, वो है फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस, ओके। FFE, हाँ हाँ। फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस। बहुत तो एक दफे उसने हमको बुलाया, जी। हाँ हाँ। ये हमारा नाम सुन के कि तुम इधर आओ। तो उसका जो हैंडल करता है वो क्या, एक साउथ का आदमी था, हम्म। और इंडिया से ऐसे गया, उसका नसीब अच्छा हो गया, फिर मल्टी मिलियनर हो गया वो। हाँ। इतना पैसा हो गया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज ये सब पूछो मत हम्म। इतना। फिर उसने सोचा कि हम इतना आगे क्यों आया, तो उसने जवाब, उसका खुद का जवाब मिला कि हमने इतना पढ़ा था इसीलिए हम अमेरिका में आगे बढ़ गया। जी। तो वो वापस देगा हम पैसा। तो वो क्या करता है, उसने स्कॉलरशिप चालू किया। हम्म। लेकिन स्कॉलरशिप किसको मिलता है कि हम्म। जो ओनली इंजीनियरिंग एंड हम्म। मेडिकल स्टूडेंट, वो भी हम्म। कितना, कि जो वो एग्जाम नहीं होता है मेडिकल का एग्जाम का लेता है, उसमें इतना मार्क आएगा, कोई बांध छोड़ कोई नहीं, कभी नहीं। ओके। हाँ हाँ इतना हाँ। होशियार होगा वो और गरीब होगा इतना, हाँ। उसको ये स्कॉलरशिप देता है। तो हम्म। बोलता है तुम राजकोट साइड और ये सौराष्ट्र में भी आप ये हमारा बजट, हमारा काम करो आप, लेकिन आप ये स्कॉलरशिप दे दो। हाँ 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 हाँ। तो हम उसका ये अभी रिप्रेजेंटेटिव जो बोलो वो है हम। हम्म। और फिर हमारे नीचे भी ये भारत विकास परिषद है राजकोट में। ओके। हाँ। भारत विकास परिषद यानी बहुत नाम है, वो पूरा इंडिया में फैला हुआ है। हाँ। उसमें आनंद नगर का ब्रांच है, प्रफुल्ल भाई उसका नाम है, ओके। वो जो चलाता है, वो सौराष्ट्र का भी प्रमुख है। हाँ हाँ। तो वो हमारा वो काफी फ्रेंड था उसने, और हम मिला के साथ में काम करता है, और ये कैंप करता है, मेडिकल कैंप, जी। ये जब डिसेबल का। तो हमको तो कितना, आप समझो कि हमको 500 आदमी को ट्रीट करने का है एक दिन में। हाँ हाँ हाँ। तो 500 आदमी क्यों, के तो ये डिसेबल जो कोई आता है अकेला तो आ ही नहीं सकता वो। राइट। राइट। हाँ हाँ तो हाँ। सबको खाने का कम से कम 100 साइकिल होगा, 200 विकलांग होगा, तो राइट। उसके साथ लेने वाला दो दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा करेगा, फिर 500 600। तो ये सुबह में आके रात तक रहता है उधर, जी। और ऐसा 2 कैंप करता है। वो हमने क्यों किया सपना जी चालू, हम्म। कि कैलिफोर्निया में एक बड़ी संस्था है हम्म। जो ये है,
इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन, ओके। हाँ हाँ आपको भेजा है हमने। हाँ। ये है ना, ये बहुत बड़ा इंडियन लोग है सब। अच्छा। उसकी भी बड़ा आज भी संस्था है बहुत बड़ी उसने, तो उसका मेंबर है हमारे पास एक गुजराती भी है उसमें। ओके। तो वो हमारा दोस्त हो गया, ये अच्छे ये काम के लिए, अच्छा काम के लिए। तो उसने एक दफे हमको बोला कि तुम इतना काम करते हो ये गरीब आदमी को, ये तो एक काम करो कि ये डिसेबल है ना उसके लिए कुछ करो। हाँ हाँ। तो ओके। वो टाइम हम 10 साल की पहले की बात है। तो हाँ हमने बोला परवाह नहीं, ओके। हाँ तो ओके ये ओके का रिजल्ट ये है। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो सर, ऐसा कोई हुआ इंसिडेंट कि आपको, आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, ऐसा कोई? हाँ, ये उसमें एक पहले एक बच्ची का है केस, हाँ। तकरीबन 20 साल का। क्योंकि वो तो गरीब आदमी तो सब आता है उधर, और हम ऐसे जाहिरात क्यों कैसे करता है आपको बोलेगा हाँ हाँ, कि न्यूज़पेपर में तो आता है, जी। लेकिन पैम्फलेट होता है ना, पैम्फलेट, हाँ हाँ वो हाँ। 10-10, 20-20 हजार पैम्फलेट बनाता है। ओके। हाँ। हाँ, और जब भी बस स्टेशन है ना, वो बस स्टेशन पर जाता है ओके। हमारा आदमी लोग, यानी सब। फिर हाँ। उधर बस जाता है ना गांव में, छोटा गांव में सब जगह बांटता है। ओके। हाँ हाँ। तो ये से हमें पूरा जाहिरात कर लेता है। तो अच्छा। फिर कभी कोई ऐसा पैसा वाला तो आएगा ही नहीं, तो गरीब आदमी बाहर गांव से इतना आएगा। हम्म। लेकिन हम जब भी बुलाता है राजकोट, तो जी। दो कैंप होता है। एक कैंप 2 दफे बुलाना है उसको। ओके। पहली दफे उसका साइज लेगा, हाँ। पग का हाथ का पूरा साइज लेगा, हम्म। समझा। फिर एक कोई साइकिल किसी को मांगता है, किसी को ये मांगता है, तो देखेगा उसका। ऐसा नहीं है कि आंख बीच के सबको दे देता है, तो भी स्क्रूटिनाइज करता है पूरा। हाँ। तो पहला कैंप में ऐसा करता है, दूसरा कैंप में उसको बुलाता है हम्म। पग डालने के, हाथ डाल। उसमें एक गांव से एक बच्ची आई थी, 20 साल की बच्ची, और उसका माँ बाप तो साथ में होता ही है, क्योंकि वो चल चल भी नहीं सकती है, उस लेके ऐसा लेके आता है। फिर आज तक ऐसा कैंप नहीं है कि जो हमारा प्रेजेंस नहीं है उधर। ओके। हाँ हाँ। अगर हम पाना रमने के है बैठे, तो ऐसा दोस्त भी मिल जाएगा। हाँ। कुछ भी सेंटर है तो हमने अच्छा काम किया है, तो अच्छा काम के लिए। तो हाँ। ये ग्रुप हमको बहुत अच्छा मिल गया, राइट। इतना अच्छा है, इतना सिंसियरिटी है, इतना सिंसियरिटी। क्योंकि ये कैंप में तो आप देखो 400-500 आदमी को हैंडल करने का, चाय चाय उसको खिलाने का, सब फ्री होता है इसको खाना। तो इतना काम करने के लिए कितना आदमी लोग मांगता है, लेकिन सबको काम बराबर लिस्ट बनाता है, सबको बराबर बांट दिया है। ये लोग अच्छी तरह से इतना अच्छा काम करता है, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। हाँ हाँ। हाँ, और आज तक हमने एक 1500 तक साइकिल दे दिया है, ओह। हाँ हाँ। 1500 ट्राइसिकल दिया है आज तक। और ओके। कम से कम 500-500 व्हील चेयर, हाँ। और कम से कम 2-3 हजार ये विकलांगों को हाथ हाँ। पग जो मांगता है वो उसमें कभी बोलने का है नहीं देता है। तो ये लड़की का अभी आपको बोलूं कि वो लड़की का आई थी, उसका माप साइज लिया पहली दफे, हम्म। दूसरे दफे आया, बराबर पग फिट किया। हम्म। फिर हम उधर ख्याल तो रखता ही है, जी। सब जगह जाता है, खाने में कैसा है, ये कितना है, कोई फिक्र नहीं है कोई, सबको यानी जो भी प्रॉब्लम है छोटा बड़ा वो हैंडल उधर करता है और पूरा कंट्रोल करता है। हम्म। तो उसको मालूम था कि ये आदमी बाहर से आता है और वो सब करता है। ओके। हाँ तो हाँ। आके हमारे पास ऐसे हम खड़ा था, तो आके सीधा हमारा पाँव ओह। वो गिर गए। हाँ हाँ।
तो हमको ऐसा, हम बेटा नहीं आप तो बच्ची है, हमारी लड़की जैसी है, लड़की को पगे नहीं लागने का है, आप नमस्ते करो हमको, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। हाँ, फिर वो बहुत रोती है। ओके। हाँ, और उसने क्या बोला हम्म, कि आज मैं 20 साल की हुई जी। और लाइफ में हम हमारा जन्म पैदा हुई है तभी हम्म, का हम डिसेबल है। ओके। हाँ, हाँ, इतना गरीब होता है, इतना गरीब होता है कि आज तक जीवन में कभी चली नहीं है। ओ, हाँ, हाँ, और ये हमको 20 साल के बाद चलाने वाला को हम ये नहीं करेगा हाँ, तो हाँ, हम किसके लिए ये right, right, किसका किसका पांव पकड़ेगा हम। बिल्कुल। ऐसा जवाब दिया हमको। फिर हमको सही है, सही है। ये लग गया कि वही। वो पहली बार चल के वो आराम बहुत से उधर से। बहुत खुशी हुई होगी आपको कि एक लड़की चल रही है अब अपने अपने हाँ हिसाब से। हाँ तो सर, एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि एक लड़का अपनी माँ को शोल्डर पे लेके आया। हाँ हाँ हाँ, वो क्या था? वो तो पूछो मत। हाँ, हाँ, उसको, क्योंकि उसके पास साधन तो है ही नहीं कुछ। राइट, राइट, राइट। हाँ, 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 तो हमने क्या किया कि वो माँ के लिए ये हाँ, व्हीलचेयर दे दिया। ओके। ऐसे व्हीलचेयर 6-7 हजार रुपया का आता है ऐसा। राइट, उसको पास कुछ पैसा लेने का है ये है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कभी। राइट, राइट। हाँ, हाँ। सब 100% फ्री में देता है। हम्म, तो उसको माँ को हमको माँ ने माँ को हमने ये दिया व्हीलचेयर। हम्म, और हम भी उसको ये करने के हेल्प किया। वो भी आया और वो उधर हम्म, से चला के लेके गया हमारा कैंप में से। हाँ। फिर एक ऐसा भी हुआ कि कोई भाई बहन थे और आप कुछ उनको ट्राईसाइकिल के कुछ दे रहे थे और किसी एक को नहीं मिल रहा था, तो ना भाई बहन ने बोला कि नहीं उनको दे दो, ऐसा कुछ हुआ था? याद आया हमको। हमने पहले दफे आया था, हाँ, रजिस्ट्रेशन किया, सब ये दोनों को दे दिया था। फिर दूसरे दफे बुलाया, लेने के लिए आया। हम्म, लेकिन लेने के लिए आया ना, तभी वो टाइम उसने क्या देखा कि एक गांव वाला, ओके। वो उसको बहुत जरूरत है, हम्म, इतना इतना गरीब और इतना ये है। और वो देखा ने, क्योंकि ऐसा कैंप में क्या होता है कि इतना रूल्स रखता है तो भी दूसरा कैंप में ऐसे ही आ जाता है कि हाँ, मिल जाएगा तो अच्छा है ऐसा। वो तो चल खैर हम समझता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता है। तो ऐसे आ गया था। फिर हम्म, उसने देखा कि देखो, हम तो दोनों हैं घर में, एक घर में, तो हम एक दूसरे का यूज कर लेगा, ओके। हाँ, लेकिन हमारा है ना, ये उसको दे दो। देखिए, गरीबी में भी इंसानियत है। हाँ, इंसानियत। तो राइट, गरीबी में भी इंसानियत है, उसका नमूना। तो राइट, राइट। उसको मिलता है तो भी बोलता नहीं, दे दो, वो तो हमारे सामने आज भी है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और ऐसा एक अमरेली अमरेली किया था हम, हर जगह बदलता है। ओके। अमरेली में किया है, उपलेटा में किया है, धोराजी जेतपुर में किया है, सोमनाथ में किया है, राजकोट में 3-4 कैंप किया है ऐसा। तो जगह बदलते रहे। फिर सुरेंद्र नगर में किया है हाँ, हाँ। कैंप। हाँ, अच्छा। तो ऐसे क्योंकि उधर भारत विकास परिषद का ब्रांच का मेंबर, क्योंकि काम बहुत है। हाँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन काम ऐसा करने का कम से कम 15-20-25 आदमी एक साथ बराबर सहकार करें, तो वो राइट। भारत विकास परिषद की ब्रांच होती है ना, तो ये ओके। लोग हेल्प करने के लिए तैयार होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि ये लोग को ऐसा है ना कि वो उधर भी काम करेगा तो उसका भी ऐसा। जी। लेकिन ऐसा कैसे भी अच्छी तरह से वो आता है, वो लिस्ट देता है कि इतना आदमी साइकिल ले, इतना ये तो हम सबको ये बांट के देता है। हम्म, अप्रूवल तो हमारा लेता ही है। ओके। हाँ तो सर, आपने कितनी लेडीज को रोजगार दिया स्यूइंग मशीन देके? हाँ, स्विंग। हाँ, वो हाँ, आज तक हमने स्विंग मशीन की दिया है
तकरीबन 400 मशीन दिया वाह, है हाँ आज हाँ तक। वो मशीन देने में हमारा एक क्या है कि ऐसे राजकोट में भी, लेकिन बाहर से भी बहुत आता है। हाँ तो हमारा उसमें मगज उद्देश्य ये है कि हम उसको देता है कि कोई घर में पहले तो पूरा कोशिश करता है को विडो है, अकेली है, घर में उसका कोई इनकम दूसरा हाँ, नहीं है, कोई ये राइट वो राइट। उसको ये काम आता है। तो हाँ अभी कोरोना में भी काफी किट दिए, फूड किट आपने। हाँ ये हाँ हाँ, ये फूड पैकेट तो हमारा ये चालू ही रहता है कि उसको, अच्छा, जो कि गरीब आदमी है उसको मालूम है हाँ हाँ, खाने का वो कितना जरूरी है। राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आज अभी 2 दिन पहले बॉम्बे में भी हम ये खाने को दिया। ओह, हमारा ये पर्सनल बात करता है। ओके तो उसने कहा कि ये फरसान बनाने का चालू किया, ओके, फरसान घर में, और हम्म, वो बेचता है भी। तो ओ- उसमें क्या 2 पैसा मिलेगा, घर की औरत भी बिजी रह गई। हमने बोला कि हम क्या कर सकता है, हम तो ओके, उधर उधर लेके हम तो खाएगा नहीं, उधर जाने वाला नहीं है, हाँ, बॉम्बे भी जाएगा नहीं तो कैसे ये करेगा। फिर जी, हमको राइट राइट, उसने जाके बनाया पैकेट पूरा, और ये झोपड़पट्टी में बोला पैसा हमने भेज दिया। ओके, हाँ हाँ, और आज से डिसाइड किया ऐसा कि हम्म, हर महीने, जी, साल में नहीं, हाँ, हर हर महीने, महीने में एक दफे एक ऐसा करेगा। ओके, हाँ हाँ, ऐसा गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी को वो पैकेट बनाता है, जी, और बड़ा ऑर्डर हम देता है, हाँ तो हाँ, बड़ा ऑर्डर लेके उसको बांटता है, वो राइट बांट भी देगा हमारे लिए। राइट राइट राइट, क्योंकि बहुत उसको तो बहुत, क्या है कि तो गरीब, हमारा काम गरीब को खिलाना है। जी लेकिन फैमिली में भी कोई ऐसा है तो जी, उसको इनडायरेक्टली यस, हेल्प मिलता है कि हम बिल्कुल इतना बड़ा ऑर्डर देता है उसको, बिल्कुल, पहला पैसा भेज देता है, बाद में ऑर्डर देता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि चलो ये बनाओ और बेच दो, नहीं, हाँ हाँ, पहला पैसा मिल जाएगा उसको, फिर ये हमारा पर्सनल करता है हमेशा। राइट राइट राइट। तो आप मतलब कब तक इंडिया आए? लास्ट ईयर तक इंडिया आए थे आप? हाँ हाँ, हर दफे हम एक दफे एक साल भी मिस नहीं करेगा बहन क्या बात जी। करते हो आप, इस एज नवंबर, में भी, इस एज में भी इंडिया आके इतना काम करके जाते हैं आप? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, नवंबर दिसंबर में हमारा, नवंबर दिसंबर जनवरी में, ये दफे मालूम नहीं है क्योंकि कोरोना है तो हाँ, इस बार नहीं, नहीं कर सकता। जी ये जी, दफे फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाएगा, लेकिन पैसा तो कुछ काम तो ये चालू ही रखता है। आज भी देखा ना, पेपर में आया है, देखा ना, 200 आदमी को ऐसे देखा, कोई एक किट का 500 रुपीज का होता है। हम्म, तो गरीब आदमी तो हर जगह है, हर जगह है। राइट तो राइट, खाने का नहीं है घर में, हमको ये लोग को मालूम है, तो ये गरीब फाउंडेशन का अकाउंट ही है। अर्पण हमारा घर का भी नाम था, अर्पण। हाँ हाँ, तो तो आपको, अर्पण है। आपको बापू कैसे बोला गया? ओ बा बापू आप में तो, परफेक्ट बापू लगते हैं। हाँ ये भी, इसमें क्या हो गया कि जी इधर इधर प्लेनो में हम रहता जी, है, टेक्सास में डलास, डलास नाम सुना होगा, काफी बड़ा। तो डलास में एक डिस्ट्रिक्ट है प्लेनो, लेकिन बहुत डिस्टेंट सिटी है। तो उधर सीनियर, गुजराती सीनियर का एक संस्था चलता है। हाँ, हर महीने में एक दफे मिलेगा सब सीनियर लोग। ओके, हाँ, और खाना खाएगा, 5-6 घंटे मिलेगा, कोई प्रोग्राम रखेगा और एंजॉय करेगा यार। तकरीबन आप समझो कि 200 मेंबर है उसका। अच्छा, हाँ हाँ सर, वहां पे 150th एनिवर्सरी हुआ था बापू की, वो क्या था? हाँ बापू जी, अच्छा हाँ, वो फिर बात हाँ, भूल गया। तो सीनियर में ये गांधी जी का बर्थडे और ऐसा प्रोग्राम आता है, और नेशनल डे ऐसा। राइट, तो हमने घर में ऐसा सोचा कि एक दफे बच्चे नो भी ऐसा कि नहीं, तुम गांधी जी जैसा लगता है ऐसा, ये हाँ, बच्चे को भी। फिर हमने सब ड्रेस और ये दोस्त लोग के पास, इसका दोस्त होता है रात को पहनता है वो
धोती है वो सब, तो हम उसके घर से लाया और ऐसे ही करके बना के गया। हाँ। तो पहले प्रोग्राम किया और उसको बोला भी कि वो ये प्रोग्राम था गांधी जी जयंती का कोई, तो बोलता है कि आप परवाह नहीं, आप आओ गांधी जी, लेकिन ये टाइम फिक्स ये ड्रेस पहन के आओ और ओके। किसी को बोलो मत, ऐसा। हाँ 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 तो हाँ। जब भी हम गया डोर के पास तो वो सब ऐसा क्लेप लगाता है हाँ हाँ हाँ। कि ये कौन गांधी जी ऐसा लगता है, फिर क्लेप। नमस्कार। ये हमारा मिसेज है, मधु देखा। हाँ, आप दिख नहीं रहे आंटी, नमस्ते। कैसे हो आप? वो भी 80 साल का हो गया है, हाँ देखेगी तो देखा ही लेकिन नहीं। हेल्थ दोनों का कैसा है आप? बढ़िया है ना? बस बढ़िया, आप कैसे हो? हम भी अच्छे। अच्छा। बहुत खुशी हुई कि आपने भी ज्वाइन किया हमको। बहुत ही आप सर और मैम, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वहां रह के भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं वो अच्छा ही लगता है हमको, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो तो जब भी हम जाएगा वो छोड़ देगा, बाकी तभी तक नहीं छोड़ेगा, बहुत क्योंकि ऐसा ये तो हमारा जीव एक लाइफ का पूरा एम है विषय कि हो गया है आपका कि हाँ, गरीब आदमी को खुशी बांटना है। जितना हाँ जितना हो सकेगा इतना। फिर बिल्कुल पहले ज्यादा रहता था उधर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अभी ये उम्र भी हो गया, नहीं तो बच्चे लोग बोलता है अभी काफी है, अकेला नहीं रहने का। जी पहले मैं रहता था अभी ज्यादा, 6 महीना रहेगा, कभी 1 साल रहा है। अच्छा, राजकोट में ऐसा अच्छी तरह सेटल था, लेकिन अभी नहीं, अभी खाली 1 महीना में वापस आ जाता है, एक नहीं, महीना लेकिन जरूर जाता सर है। आप आएंगे तो हमसे मिलेंगे ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप हम कैंप में आप एक कैंप में जरूर आना जिधर आप, आपको मालूम कर, लेकिन देखेगा अभी ये कोरोना का क्या होता है। ये कोरोना होगा तो ये हाँ, डिफिकल्ट है जी बहुत। सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपको आपके काम को बहुत सालों से देख रही हूँ फेसबुक के थ्रू, तो मुझे अच्छा। हाँ, बहुत सालों से मैं आपके काम को देखती जा रही हूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ पर आपके लेवल का नहीं है, मेरा छोटा है। तो मैं हाँ, आपको हमेशा फॉलो करती हूँ कि कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और आज फाइनली इतने सालों बाद बातें हो रही है हमारी कि हाँ। लेकिन अच्छी तरह से। जी, दूसरा क्या पूछना है बोलो। मुझे पूछना है कि बापू की जो एनिवर्सरी हुई थी, हाँ, उनकी फिर ग्रैंड आई थी, अच्छा अच्छा, वो क्या? फिर उधर से तो क्या कि वो अवार्ड भी देता, फैंसी ड्रेस के लिए अवार्ड भी था वो टाइम, ओ, हाँ, ये हमारे सीनियर में। ओके, तो वो गांधी बापू एक कस्तूरबा बन के, आप देखा है फोटो है, तो हाँ, वो पहला अवार्ड हमको मिला, वो इतना ये मिला। फिर क्या कि बात सबको फैलाई गई कि ये तो गांधी, और गांधी जी का इतना रिस्पेक्टेबल है जी, कि उसको मान मिलेगा कि ये तो ऐसा गांधी जी जैसा लगता है, हाँ, कितना ये है ये। फिर क्या नाम हमारा प्रसिद्ध हो गया। ओके, तो इधर इधर दलास में क्या है कि ये लोग ने एक गांधी जी का बड़ा स्टेच्यू भी बनाया है, अच्छा, हाँ हाँ बड़ा स्टेच्यू है, बड़ी जगह है उधर। हाँ, तो हर साल बड़ा प्रोग्राम होता है। जी, हाँ हाँ, हाँ, तो गांधी जी का स्टेच्यू है, तो ये लोग को भी आस्ते आस्ते मालूम पड़ गया कि एक आदमी ऐसा है इधर कि जो गांधी जी जैसा लगता है। ओके, फिर ये 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 दफे तो 150 इयर्स का सेलिब्रेशन किया ने, तो ओके, उसने गांधी जी का ग्रैंड डॉटर अभी जो साउथ अफ्रीका में है, जी, मिसेस इला भट्ट, इला, हाँ जी, हमने फोटो भेजा है, नहीं हाँ, अगर नहीं है देखा, नहीं तो मैंने देखा, उस वो चीफ गेस्ट बुलाया था उसको, ओके, हाँ हाँ, चीफ गेस्ट हो, हम्म, और उसको ऐसा बोला कि आप सरप्राइज में आ जाओ कि उसका दादा दादी मिलेगा ऐसा। तो ओके, इसलिए हमको भी बोला कि आप मत आओ पहले से, हाँ, लेकिन जब भी प्रोग्राम चालू हो गया, टाइम हमको दे दिया कि ये टाइम पर ही आप एंटर जी, होना। हाँ हाँ तो हाँ, वो देखकर हमको इतना खुश हो गया। आज 15-20 तो फोटा हो, इससे क्या हाँ। 50 फोटा होगा वो। तो, सर अब आप है ना, हम जैसे लोगों को क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे? हमारा एक ही बात उसमें है कि कुछ भी करो लेकिन जरूर करो पहले तो, जरूर करो, राइट राइट राइट, हाँ, क्योंकि जीवन में
हमने विपස්සना भी इधर इतना सीखा है जी और हम ये रिलीजियस भी इतना देखा है, तभी विपස්සना ऐसा किया है। तो एक बात जीवन में आ गया है अच्छी तरह कि इसीलिए अच्छा काम करता है नहीं कि हमारा कर्म जो अच्छा है ना, तो हम अच्छे। आप देखो आज ऐसा नहीं है कि हमारा काम का बदला देता है, हमको जरूर मिलेगा जो किया है, लेकिन आप 82 साल के ये दोनों की राइट एज देखो, हेल्थ देखो, राइट एक दिन भी कभी बीमार नहीं होता है, ऐसा ऐसा लाइफ पूरा स्वस्थ होता है, इंडिया का आता है। तो अच्छा काम करता है। कितना गरीब, ये तो आपको खाली 2-4 एग्जाम्पल दिया, बाकी तो कितना गरीबों को हम मदद करता है। तो ये लोग का आशीर्वाद है सब। सही उसको अंतर से तो ये हाँ करेगा कि उसका तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा एक वो उसमें एक क्या हो गया था, एक दफे एक पुलिस करने वाला था, हाँ पुलिस का काम करता है, वो भी बहुत होता है ना हमारा जो पुलिसिंग करता है बेचारा, वो भी लंगड़ा पूरा है, चल नहीं सकता था। हाँ 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 उसको वो पग दिया था हमने। ओके हाँ वो क्या बोलता है कि बस हमारा एक ही जीवन में अभी एक ही इच्छा आपके हमारे पास आया हो कि जी आप, हमारी इच्छा एक ही बाकी है कि आप हमारे पास आके कभी आपको शुरू से वो पॉलिश करके जाओ, हाँ करवा लो हमारे से। हाँ और हम गया था उसके पास, हाँ इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि राइट राइट तो मैम मैम से पूछना चाहूंगी कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगी सब आप कुछ मैसेज देना चाहोगे अच्छा सा सब अच्छा तो अंकल ने दे दिया, अभी मैं क्या बोलूं। नहीं नहीं आपका भी वेलकम है आप भी बोलिए कुछ तो अभी हमारा पूजा पूरा किया और हम बोला आपको नमस्ते कर लूं थोड़ा। हाँ नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया आपको और अभी इस बार इंडिया आए तो आपको आना है घर पे आना है और हमारे जरूर साथ आएगा। मिलना है। वो तो आते ही रहते हैं। हम आता है इंडिया तभी होता है, इतना एज भी है। और दूसरा क्या, कभी इतना टाइम नहीं है कि हमारा प्रोग्राम इतना होता है, एक दिन भी खाली नहीं है उधर। राइट 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 सब फिक्स किया है, एक दिन है, ये दिन है, ये दिन है, ये दिन है। बिल्कुल बिल्कुल और हमारा हाजिरी, हमारा मेन एम लाइफ का यही है कि हम सबको तिलांजलि दे दिया है कि हाँ नहीं तो काम नहीं कर सकेगा। हाँ 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 तो राइट इसलिए अभी अभी आना, हमारा एज भी हो गया, तो अभी लिए इतना ट्रैवलिंग और ये नहीं कर सकता है। राइट इसीलिए आपको ऐसा बोलेगा हम आएगा और ये करेगा ये करेगा, लेकिन निकल तो सकता नहीं है। कभी 4-5 दिन पहले का अहमदाबाद में आता आता था था, अब बहुत है नाश्ता। अभी हम लोग भी आपकी जो दिनचर्या है उसको फॉलो करना शुरू करेंगे नहीं नहीं, वो तो क्या, लेकिन कुछ तो भी डिसिप्लिन रहा है, डिसिप्लिन भी अच्छा है चीज। जी वही हाँ, एक अमरेली का, हमको अगर 2 मिनट है, 2 मिनट टाइम। हाँ बोलिए बोलिए अमरेली का वो एक क्या किस्सा था, वो कैंप में गया था तब। हाँ तो एक डिसेबल था ने, तो उसने बोला कि हम, उसने ये देखा आया लेने को कि हम स्विंग मशीन भी देता है ओके हाँ किसी को, वो नाम लिखा है सबका, चेक कर लिया है सबको। तो वो आके हमारे सबके पास आया, वो ऐसा इतना गरीब और रोने लगा कि अंकल, ये हमको अगर व्हील चेयर, ये साइकिल नहीं देगा तो चलेगा, हाँ लेकिन हमको एक स्विंग मशीन दे दो। ओके हाँ हाँ फिर हम बोला हम ऐसे कैसे देगा, ये मैनेज करना है ऐसा इधर उधर। तो बोलता है नहीं, कुछ भी करो। वो रोने लगा और हमको स्विंग मशीन दे दो। हाँ हाँ फिर उसकी स्टोरी हमने जाना हाँ कि उसको वाइफ उसका डेथ हो गया था, हाँ और उसको 3-4 लड़की थी बस। हाँ हाँ लेकिन ये लोग क्या करता है घर में, ये डिसेबल है भाई, तो वो स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन, वो रेंट पर लेके काम करती थी। ओके हाँ वो रोज का 1 दिन का 10 रुपया रेंट, वो टाइम अमरेली में, अरे 4-5 साल हो गया। तो 300 रुपया तो उसको रेंट का चला जाता है, वो गरीब आदमी के लिए बहुत है।
फिर बोलता है ये हमारी हालत इतनी ये है, तो फिर हम बोला परवाह नहीं, हम कैसे भी किया जी। उसको सिलाई मशीन दे दिया। लेकिन सिलाई मशीन दे दिया ने तभी उसने ये बात किया। और हम उसने क्या बोला कि आज हमको हमारा भगवान मिला है। ओके, हाँ हाँ हाँ। हमने इतना हमारा बच्चे को खुद की लड़की है उसको ये मशीन जाके ऐसे किराया के बगैर वो जी। काम करेगी अभी। बस वो हाँ। इतना रोया कि पूछो मत। तो इतना कभी कभी ऐसा इंसिडेंट आता है ना वही ना, कि हाँ। नहीं, तो दे दिया उसको, सच दे दिया। बहुत आई मीन बहुत अच्छा लगा कि आपने सारी लाइफ स्टोरी शेयर की हमारे साथ, और बहुत खुशी होगी हाँ, आपसे। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और अच्छा लगा कि सब जानने को मिला कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस थे आपके, और कैसे जो किया। और फैमिली के साथ हो तो आप लक्की हो, क्योंकि आजकल कहाँ यूएस में तो फैमिली साथ होती ही नहीं है। बहुत बड़ी इधर बात। हमको इतना विश्वास है कि हम जाएगा छोड़ के तभी हम घर से हाँ, छोड़ के जाएगा, बाकी बहुत नहीं बहुत जाएगा। बड़ी बात है, अपना बच्चे लोग बहुत संभाल अच्छे संस्कार दिए आपने, बहुत ही अच्छे संस्कार। तो अब ओके, इंडिया आओ तो पक्का मिलना है, आप नहीं आ हाँ सकते सर, मुझे बोल देना। जरूर मैं, जरूर, लेकिन आप रेडी रहना, जिधर कैंप है ना हाँ, उधर आ जाना, और हमारे घर में ही रहना। पक्का पक्का पक्का। घर भी ऐसा है कि कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप जाके होटल में रहे हो, ऐसा नहीं। हाँ हाँ घर हाँ। में आराम से लेके सीधा उधर आओ, हम लेने को आएगा आपको, हमारा नहीं, ग्रुप ही है, तो ऐसा कोई फिक्र मत करो, घर में भी काफी हाँ अच्छी तरह से आप। हाँ, पक्का पक्का। ठीक है, नमस्ते। ओके, अच्छा नमस्ते। लगा, हाँ, ठीक है, चलो, नमस्ते। नमस्ते।